Okay, so before we take the parts of the constitution, there is a very good question कि क्या सारे bills which is in under consideration they have to be studied. Okay, so if you go to the PRS website, so you will see when you scroll down in the bills and act section, in the bills and the act section, you will see a lot of bills. So there will be a pharmacy bill as well. Okay, there will be a, let us say, some MP MLA salary bill. Okay, so do you need to open this salary bill? Do you need to open this salary bill? Okay, so just keep this in mind that ये सारी चीजें यूपीएससी के लिए यूजफुल नहीं है. ऑल राइट, बट फार्मेसी जो है वो आप, यू आर नाउ इन कंफ्यूजन. इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? सो सबसे आसान चीज मैं बताता हूं, डू नॉट गेस योर सेल्फ. सी वॉट मेरे साथ धोखा हुआ है. मेरे साथ कभी कभार क्या होता है, सो व्हेन आई एम देयर ऑन द पीआरएस वेबसाइट टू मेक नोट्स and for the group, so when I scroll all the bills and I say to myself, यार इससे क्या पूछेगा, this is useless kind of thing. Okay, geology bill, what is this? All right, this is not related to any kind of constitutional thing. But when I open this, let us say pharmacy bill, and I open the summary, I don't open the entire thing, my friend. Please open the summary. Whenever you go to the PRS website, open the summary, not the entire thing. Summary में the 99 points are useless. 99%, not 99 point, but 99% of the points are useless. Okay, some की जन औषधि केंद्र में ये होगा वो होगा, something like that. But one point is very important, and that is related to, let us say, pharmacy bill है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. सो क्या ये पॉलिटी का बिल है? दिस इज पॉलिटी करंट अफेयर्स. इज दिस नॉट प्रोवाइडिंग मी ए करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक? उस बिल में, फार्मेसी वाले बिल में, सिर्फ समथिंग वर्ड्स आर रिटन यूजलेस, नथिंग टू डू विथ यूपीएससी, बट ओनली वन पॉइंट इज देयर, and that is API, active pharmaceutical ingredient. And I then copy that word API and then Google it and then write UPSC at the end. API UPSC. Drishti ka website opens, Byju's ka website opens, and then I get all the information and then I move ahead. So एक चीज मैं ये कहूंगा कि give one day, because I know that your days are very important now. 110 days are left. So I'll say give one day entirely, maybe in the month of March, April. Okay. And sit with the bills and acts, scroll till 2023 January. Okay. 2023 जनवरी तक आप स्क्रॉल कर सकते हैं. अगर टाइम कम है तो 2024 जनवरी तक स्क्रॉल कर सकते हैं, विच मेक्स इट अराउंड 12 to 16 months ऑफ बिल्स एंड एक्ट्स. और वहां पर जो है उसके समरी को, इंपॉर्टेंट बिल्स के समरी को, एमपी एमएलए सैलरीज एंड ऑल दीज थिंग्स डोंट ओपन, बट एनीथिंग विच कैचेज योर अटेंशन. इफ इट इज, लेट अस से, कोल माइनिंग, मिनरल्स एक्ट. नाउ यू से मिनरल्स एक्ट का क्या है? why minerals act I have to read in polity, but can't the minerals act can't the minerals act provide you information for current affairs of geography? That okay, there is some mineral, let us say lithium, so now you have to see where is lithium found, where is the lithium triangle. 2023 prelims, they had asked about cobalt, they had asked about zinc. Okay, so all these things जो है आपको देखना है. By which month the prelims question is prepared? So generally we study till March end. हम जो है मार्च एंड तक का पढ़ते पढ़ते हैं. द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे जनरली प्रोवाइड द कॉम्पाइलेशन. जैसे PT 365 है वो फेब्रवरी तक का आता है, जैसे मई में एग्जाम है, सो दे विल गिव टिल फेब्रवरी. सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे आस्क यू टू रीड द न्यूज़पेपर टिल द लास्ट डे. ओके, एक क्वेश्चन था वो याद है, वैगल डांस वाला. वैगल डांस दैट हैड कम इन 2023 prelims. So Waggle dance, it had featured in the Hindu newspaper, not the newspaper, but rather the website, on March the 22nd.
or it was present in class fourth एनसीईआरटी, नॉट एनसीईआरटी बट गवर्नमेंट की जो किताब आती है ना, एनसीईआरटी इट ऑफिशियली स्टार्ट फ्रॉम सिक्स्थ, बट जो गवर्नमेंट की फोर्थ क्लास की बुक आती है उसमें वैगल डांस दिया हुआ था. सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रीड द फोर्थ क्लास फिफ्थ बुक्स? इट इज नॉट पॉसिबल. बट दिस March 22 का न्यूज में इट हैड देयर वॉज ए पिक्चर ऑफ अ बी, देयर वॉज ए पिक्चर ऑफ अ बी, एंड ये जो बी है दिस वॉज बेसिकली व्हाट टू से, उस बी के कैप्शन में वैगल डांस लिखा हुआ था. तो अगर आप वो हिंदू के आर्टिकल को खोलते वेबसाइट पे, इफ यू वुड हैव ओपन दिस एंड देन उसमें आपको दिखता, ऑलराइट, उसमें आपको दिखता तो वैगल डांस आपको पता चलता. इज इट क्लियर टू एवरीबडी कि कहां तक पढ़ना है? तो टेक्निकली आई विल से द बेस्ट बेट इज दैट यू रीड द current affairs till March end. Some people say April, some people say read till the last day. I personally subscribe to this school because I have seen the sources, I have seen the proof that March end तक UPSC questions पूछ रही है. Okay, is it clear to everybody? Okay, now I think we can shift to the parts of the constitution. So Constitution of India originally had 22, later 3 were added, so total we get 25 parts. Okay, so it's a very, it's a humongous book. So which constitution is the largest written constitution in the world? किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन जो है is the largest written constitution? Is it United States? Is the United States? It's a constitution of India. There are 1,46,385 words. Okay. So Constitution of India जो है इसको obviously it's such a humongous, okay, it's such a humongous book. तो उसके लिए जो है 22 पार्ट्स एंड लेटर 25 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया. So part 1 of the constitution, it contains article 1 to 4. So union and its territory. Open your Lakshmikant and you will see the initial chapters. Chapter 2 या chapter 3 आपका union and its territory होगा. Okay. Open your Lakshmikant and then you will see that chapter, उसके बाद जो है chapter आपका citizenship पे आएगा. Okay. After preamble आपका जो है citizenship पे आएगा. यस, और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स. तो लक्ष्मीकांत में फिर कह रहा हूं, लक्ष्मीकांत इट इज जस्ट योर समरी. ओके, इट इज अ समरी of your constitution and its content is organized in the same manner as the constitution. Okay, तो इसीलिए constitution को syllabus बनाना, you have to make the constitution as the syllabus, otherwise you will either miss a chapter from Lakshmikant or you will miss something from within the chapter. लक खराब रहता है तो क्या होता है पता है? Suppose there are 10 chapters in a book, you have read 9, you have left 1, and this one chapter gives you 3 questions. ऐसा भी होता है. That okay, you have done 9 chapters very well, you have left 1 chapter due to maybe ignorance, गलती से छूट गया, laziness, something like that, and once you go to the examination hall, you see 2 through 3 questions. And in this competitive environment where people lose the prelim seat by half marks, 0.2 marks, 0.1 marks, 3 questions are huge. Okay, so part 1 में क्या है? It talks about the union and its territory. Part 2 में क्या है? It talks about the citizenship. Part 3 में fundamental rights. Part 4 में it talks about the DPSP. DPSP और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है? एक मेजर डिफरेंस है, these are justiciable and these are non justiciable. What does this mean, my dear friend? इसका मतलब ये होता है कि justiciable का मतलब है you can go to the court for the enforcement of the fundamental rights. Okay, whereas DPSP, these are just guidelines
these are just policies. Okay, so होता क्या है, that it is assumed that the state does not have enough money to implement the DPSP right now, so this is a gradual process. Okay, then something which was added due to our socialist influence, it is called फंडामेंटल ड्यूटीज. सो वो बाद में ऐड किया गया. एक चीज बता देता हूं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आप, इफ यू विल रीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो सपोज देर इज आर्टिकल 51 एंड देन यू विल सी आर्टिकल 51A, देन यू विल सी, मान लिया एक्स आर्टिकल है, उसके बाद बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है. इट मीन्स व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन दैट दिस इज अ अमेंडमेंट. इसको बाद में अमेंड करके डाला गया है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली आर्टिकल 51, बट ए जो है और बी जो है, सी जो है, डी जो है, दिस इज फर्दर अमेंडमेंट के साथ डाला गया है. ओके, सो इफ यू विल लुक एट आर्टिकल 21, दिस वाज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बट इफ यू विल लुक एट आर्टिकल 21A, सो दिस टेल्स अस दैट ये ए जो है इसको अमेंड करके, अमेंड मतलब क्या होता है, गलतियों को आप अमेंड करते हैं ना, यू मेक मिस्टेक्स देन यू मेक अमेंड्स. इंग्लिश में यही कहते हैं ना, यू मेक अमेंड्स. अमेंड्स का मतलब है दैट देयर माइट हैव बीन सम डेफिशिएंसीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको जो है आप फुलफिल कर रहे हैं, उसको आप क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, उसको करेक्ट कर रहे हैं. सो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस थिंग हैज टू बी देयर. उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सोवियत इन्फ्लुएंस के चलते डाला गया था. तो व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट वी हैड साइंड इन 1971 द इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी. ओके, हमने क्या साइन किया था? इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी. एंड आफ्टर द बांग्लादेश वॉर वी हैड बिकम ग्लोबली आइसोलेटेड, and the Soviet Union, it was our only ally, and obviously what happened was they started to interference in our system. So uske wajah se we had the 42nd Constitutional Amendment Act. This was during the time when the nation was going through an emergency crisis. और उस समय जो है हमने अपना प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया, और हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज उसको भी ऐड किया. सो इसके चलते, फंडामेंटल ड्यूटीज के चलते, हम जो है दिस वाज समथिंग वी सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड आवर सोवियत डिपेंडेंस. ओके, सो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेजेंट नहीं था. पार्ट 5 ये 52 टू 151 बताता है. तो इट स्टार्ट्स विद द प्रेसिडेंट एंड इट एंड्स विद द कैग. ओके, सो यहां पर दो चीजें हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट अगर हम ऑफिस या बॉडी की बात करें, सो देर आर टू काइंड्स ऑफ ऑफिसेज और बॉडी इन दिस, अंडर दिस यूनियन. वन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी and the other is the non-constitutional body. It can be a statutory body or it can either be an executive body. What is a constitutional body? Constitutional body simply means that the position or the office or the institution is mentioned in the constitution. आपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोली, you opened the Constitution of India, you see, okay, CAG is there, Attorney General is there, okay, Prime Minister is also mentioned once, the President is also mentioned, the Vice President is also mentioned, the Speaker, okay, it is here, UPSC is mentioned. So these are the constitutional bodies. Whereas if it is not mentioned, so it means it is non-constitutional body or extra constitutional body or outside the constitution body. It can be of two types. One is statutory body. What is a statutory body? Anything which is made by a law. It has the backing of a law. There is an act, let us say XYZ Act 2025, and it creates a office, let us say of Supreme Commander.
Okay, so the XYZ Act 2025 says that India shall have a supreme commander. So what kind of body is this supreme commander? Is it a constitutional body? It is via an act. It is not. Okay, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया वो. बट दिस सुप्रीम कमांडर, हाइपोथेटिकल जो एग्जांपल हम देख रहे हैं, XYZ अमेंडमेंट. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल XYZ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2025, and this creates the body, and this creates the body called the supreme commander. So this is now, is it a constitutional body or a statutory body? This constitutional amendment act has been passed, constitution has been amended, constitution के अंदर लिखा जा चुका है. Okay, so now somebody is asking a question which is a very genuine question. I'll deal with that first. Somebody is saying that if made by law, then why not in constitution? Okay, so try to understand. There are two kinds of law, my dear friend. इंडिया में दो टाइप के लॉ होते हैं. एक होता है आपका नॉर्मल लॉ, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ. ओके, और एक होता है आपका नॉर्मल. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, दिस अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन. This does what? This amends the constitution. Whereas the normal constitutional law, this is basically passed by the parliament. Okay. And it can be repealed by the parliament as well. It can be abrogated by the parliament. It can be thrown out by the parliament. ऑल राइट, दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ये जो नॉर्मल लॉ है वो पार्लियामेंट ही बनाता है. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है, it follows a different pattern, it follows a different procedure, it follows a different procedure. तो उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड्स द लिविंग डॉक्यूमेंट दैट वी कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट हैज ए परमानेंट इंक्लूजन और परमानेंट ओमिशन और परमानेंट रिपील. वेयर एज ए नॉर्मल लॉ वो सिर्फ क्या करता है, दिस इज वाया द पार्लियामेंट. ओके, एंड इट डज नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको. सपोज 106th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ. किसने पास किया? पार्लियामेंट ही ने पास किया होगा ना. 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पार्लियामेंट वुड हैव पास दैट. पार्लियामेंट वुड हैव पास दैट. सो दिस इंसर्टेड समथिंग 334 में, एक ऐड किया कि नहीं, ए ऐड आया कि नहीं. आर्टिकल 334 बहुत अकेले बैठा हुआ था, एंड इट वॉज सिटिंग अलोन एंड इट वॉज डूइंग नथिंग. All of a sudden, 106th Constitutional Amendment Act was passed. Act, Constitutional Amendment Act. Act, please remember this. So 334A, now the 334 article, it has to share space with a new addition called 334A. Whereas एक लॉ है, लेट अस से MMDR एक्ट. ओके, ये क्या कर रहा है, इंडिया के मिनरल पॉलिसी को चेंज कर रहा है. क्या इससे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज हुआ? दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. क्या इससे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ? नो. इससे क्या हुआ? इससे एक पॉलिसी और एक लीगल चेंज हुआ. ओके, so can I say that the one which is only there since constitution is constitutional and newly made law? No, 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 you are confusing my friend. Okay, यह बहुत बड़ा confusion है. देखिए, पहली एक बात बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्या ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है? इज इट अ रिजिड डॉक्यूमेंट लाइक कुरान, बाइबल, भगवत गीता? ओके, ऑल राइट. सो ये जो है लिविंग डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या है? यू कैन add something in the constitution, you can
repeal something from the constitution, or you can maybe delete or change something, change the wording something in the constitution. So living document hai, our founding fathers, our founding fathers, they had made the constitution a living document with the view that with the change of times, new addition, deletions, and change might be needed inside this document. We cannot make it a rigid religious document like the Bible, Quran, Gita. It has to be a flexible document. But at the same time, the founding fathers also said कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना आसान नहीं होना चाहिए. Why? Because then any leader or any prime minister will continue to change everything in the constitution and the constitution will lose essence. Okay? So इसके लिए क्या किया गया? The parliament was given powers to change the constitution, but it has to follow rigid procedure where it needs the backing of the majority members of the parliament. अब किस तरीके से, उसमें भी अलग अलग तरीके से होता है. There are some provision जिसको थोड़ा easily किया जा सकता है. There are some provision which can be changed a little bit easier. There are certain provisions which need stringent process. Okay, so उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये चीज समझ लीजिएगा. दूसरी चीज मैं क्या कह रहा हूं, that parliament can either make, it can either pass a constitutional amendment act. CAA समझ में आ गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहां पर रेफरेंस कर रहा हूं मैं. एंड पार्लियामेंट कैन ऑल्सो पास ए नॉर्मल एक्ट. दोनों को पास करने की पावर है, बट प्रोसेस इज डिफरेंट. दिस इज रिजिड प्रोसेस बिकॉज इट इनिशिएट्स चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नॉर्मल एक्ट जो है दिस इनिशिएट्स, दिस इज सिंपल प्रोसेस. जो भी प्रेजेंट है और उनका जो बस आपको मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का, पास हो जाता है. Whereas कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कैटेगरी है. वाई? बिकॉज दिस इंक्लूड्स चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ एक मिनट, जस्ट बिकॉज दिस वट एवर ही सेड वाज, इट वाज थोड़ा सा डेंजरस टेरिटरी में है विथ रिस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग. सो यू कैन नॉट से दैट कॉन्स्टिट्यूशन जब से इनिशिएशन में है. कब से इनिशिएशन में है? 1950, 26 अगस्त 1950 से है. तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव हैपेंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. बट द फाउंडिंग फादर्स और बाबा साहेब अंबेडकर एंड नेहरू एंड ऑल दीज पीपल who were the member of the constituent assembly, they had said that it should not be easy. Okay, it should not be easy for the parliament to change, but at the same time there has to be provision for changing. Why? Two things. The first thing, why the constitution need to change? It need to change to adapt to time. Yes or no? It need to change so that it can adapt to time, but at the same time the process is rigid and it is different from the normal act. Okay, दोनों जगह पे आई थिंक somebody was also asking क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं. एक सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप लेके आइए, you bring a subsequent constitutional amendment act and this will be removed, but again a rigid process has to be followed. But when it comes to normal act which only changes the government's policies, which only changes the normal laws, that is very easy to repeal, that is very easy to pass in comparison to the constitutional amendment act. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. प्लीज मुझे अभी बताइए, क्या किसी को डाउट है? डू यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? अभी बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बोलना ही नहीं है. बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बोलना है. कंफ्यूज बहुत गंदा वाले होंगे सब लोग. ओके, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी के भी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी समझ में आ गया आप लोगों को? दैट इट हैज बीन मेंशन्ड, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है,
स्टैट्यूटोरी का मतलब क्या है? दैट एक नॉर्मल एक्ट पास हुआ है, सिंपल एक्ट पास हुआ है, एंड इन दैट सिंपल एक्ट अ बॉडी और एन ऑफिस इज मेंशन. अब मैं बोलूंगा सेबी चेयरमैन. इज सेबी चेयरमैन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो it is not a constitutional body, but this body is mentioned in the SEBI Act. SEBI Act में क्या लिखा हुआ है कि there shall be a chairperson who will head SEBI. So this is the statutory body. What is executive body? What is executive body? Executive body है, सुबह में मोदी जी को मन किया कि यार एक ना ये मुझे ना एक आदमी को बनाना है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी. तो मोदी जी ने साइन किया फ्रॉम टुडे, ओके, मुजी पेपे विल बी द ओएसडी फॉर मोदी जी. ओके, और नीचे में साइन कर दिया, ठीक है. फिर व्हेन मोदी जी सीज माय फेस ही सेज कि मजा नहीं आया, एंड देन इन द इवनिंग ही passes एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ही सेज मुजी पेपे इज आउट ऑफ माय ऑफिस. ओके, सो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से, क्योंकि हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, हु इज द डिफैक्टो हेड? पीएम, प्राइम मिनिस्टर. तो उन्होंने बस एक साइन कर दिया और ये बॉडी क्रिएट हो गई. ओके, तो पावर में सब पावरफुल बॉडी कैसे हुई? द मोस्ट पावरफुल बॉडी विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बिकॉज दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर पावर्स आर प्रोटेक्टेड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, बिकॉज देयर पावर आर प्रोटेक्टेड इनसाइड लॉ. सबसे कम पावरफुल कौन हुआ? एग्जीक्यूटिव बॉडी, बिकॉज दे आर मेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन. अगर मोदी जी चाहें, इफ मोदी जी wants, he can remove नीति आयोग within 1 hour, within 2 minutes. 1 घंटा तो ज्यादा ही बोल दिया. Constitutional bodies can be removed, but how? You answer, please. You try to answer. Constitutional bodies can be removed, but how? They can be removed. Very good, you got it. Amendments. लेकिन क्या अमेंडमेंट आसान है? क्या अमेंडमेंट आसान है? नहीं, आसान नहीं है. ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी, यू नीड पार्लियामेंट्री रिक्वायरमेंट. सेबी चेयरमैन को हटाने के लिए, इफ यू वांट टू रिमूव द सेबी, सेबी चेयरमैन का ऑफिस को डिलीट कर देना है. अब आप कहेंगे कि सेबी का चेयरमैन का ऑफिस होना ही नहीं चाहिए, सो यू नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल. आप पार्लियामेंट में जाएंगे, सेबी एक्ट, रिमूवल ऑफ चेयरमैन 2025 प्रेजेंट करेंगे, पार्लियामेंट उसको मोहर देगी, एंड देन द स्टैट्यूटरी बॉडी विल सीज टू एग्जिस्ट. एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ने अपने पावर के अंदर उस बॉडी को क्रिएट किया, और उसके बाद इट इज अप टू द एग्जीक्यूटिव टिल व्हेन द बॉडी विल लास्ट. ओके, इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर हो गई? जैसे फॉर एग्जाम्पल, सेबी, सेबी चेयरपर्सन, he is there, let us say, since 1988, and the SEBI Act was passed in 1992. ओके, ध्यान से समझिए. तो सेबी चेयरपर्सन वाज इनिशियली क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. सरकार ने ऑर्डर किया, गवर्नमेंट ने, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, और उसने सेबी चेयरपर्सन का ऑफिस क्रिएट हो गया रातों रात. देन इन 1992 अ बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और स्टैट्यूटरी बॉडी का उसको दर्जा मिल गया. दे गॉट एलिवेटेड फ्रॉम एन एग्जीक्यूटिव बॉडी टू ए स्टैट्यूटरी बॉडी. कल को अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है which includes the SEBI chairperson inside the constitution, so they will become the constitutional body. Is it clear the difference between executive, statutory and constitutional body? It's not ordinance, my dear friend. Simple order है, मोदी जी का साइन, कोई ऑर्डिनेंस नहीं है ये. सिंपल ऑर्डर, आपको बस साइन कर देना है दैट आज से ये बॉडी क्रिएट हो रही है, सिग्नेचर. ओके, ऑल राइट. तो ये चीज जो है, एग्जीक्यूटिव को पावर्स मिले हुए हैं. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर. सो सम पावर इज देयर विद द एग्जीक्यूटिव एज वेल.
ओके, और उसी को यूज करके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज बना सकती है. आइदर यू कैन टेक कैबिनेट अप्रूवल, or you can, the prime minister can do on his own. Okay, but executive power rests. All right, you are very correct. Any body created via normal act is a statutory body. Any body created via constitutional amendment act is a constitutional body. Okay, any area for executive order, can you tell me, like, can you be more specific? Okay, what you are trying to ask. All right, पार्ट 6 में क्या है, स्टेट. तो ये ध्यान रखिएगा, पार्ट 5 में यूनियन के बारे में है, वेयर वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशियरी एंड द कैग फ्रॉम 52 टू 151. In the part 6 from 152 to 237, we talk about executive, legislature, judiciary. Now, why is this important? UPSC had asked a question. एक चीज आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, दैट व्हाट इज आर्टिकल 142. आई थिंक दे हैड आस्क्ड दिस इन 2020. So you have no idea what is article 142, but you have an idea of the range, that okay, between 52 to 151 they are talking about the union. So what was the option in 142? Election commission, high courts, UPSC, I think something like constitutional body, and complete justice of Supreme Court. You have no idea what is Article 142, but you know election wala to aage hai. Election wala I have read. This is present in part 15. UPSC, you know, this is not here. High Court, you know, High Court is there in the 152 to 237 range. So you know only option left is the complete justice of the Supreme Court. You can answer like this. If you just know the range via the parts, if you know the parts, then you know the range, and some questions can be easily answered like this. Part 7 has been repealed by the 7th Amendment. अब समझ में आया? अमेंडमेंट करके सरकार ने उसको रिपील कर दिया, उसको निकाल दिया यहां से. पहले एग्जिस्ट करता था. So you can add something, you can modify something, and also you can repeal something. Okay, and both statutory and constitutional amendment act is passed by the parliament, लेकिन दोनों का प्रोसेस डिफरेंट है. प्लीज रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, whereas the statutory one or the simple act, it is easy to pass. Okay, is it clear? Part 8, यूनियन टेरिटरी बिटवीन 239 एंड 242. अगर दिल्ली पे क्वेश्चन आ जाए, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यू हैव नो आइडिया वेयर इट इज, बट यू नो द रेंज, दैट ओके, दिल्ली वाला ना कुछ 230 से 250 के बीच में है, 240 के बीच में. यू कैन आइदर डू द क्वेश्चन करेक्टली और एटलीस्ट यू कैन एलिमिनेट समथिंग. ओके, पार्ट 9, 243 टू 243 ओ. ओ मतलब बहुत सारे एडिशंस किए गए. 243 ए, 243 बी, 243 सी, अप टिल 243 ओ. ओके, देर आर मल्टीपल एडिशंस, अमेंडमेंट्स, एडिशंस वाया अमेंडमेंट्स. ओके, सो पंचायती राज, पार्ट 9A, म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटी. व्हाट डज दिस मीन माय फ्रेंड? फिर से मैं पूछ रहा हूं, ए और बी, पार्ट 9A एंड पार्ट 9B. Part 9A and Part 9B, it means it has been added later on. It has been added later on. बाद में इसको ऐड किया गया है, अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है. पहले जो है पार्ट 9 था, पार्ट 9A और पार्ट 9B, उसको फिर जो है अमेंडमेंट के थ्रू आपने ऐड किया. ओके, यहां पर जो है, यहां पर है, somebody is asking कि ये 239AA का मतलब क्या है. ये ए का मतलब क्या है? सी बेसिकली उसी का ए एक ऐड किया आपने. इनिशियली आपने क्या ऐड किया? 239A. अब उसमें ही एक और क्लॉज ऐड करना है.
ओके, उसमें ही आपको क्या करना है, एक और क्लॉज ऐड करना है, एंड दैट विल बी, देन इट विल बी ए। देर इज ऑल्सो ए 239 AB। अब समझ में आया? क्लॉज का सब क्लॉज है। 239 आर्टिकल अकेले बैठा हुआ था, अपना मस्ती में है, इसको कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छे से अकेले बैठा हुआ है। अचानक से पार्लियामेंट ने बोला कि आज से तुम्हारे साथ ये भी रहेगा, तुम्हारा छोटा भाई 239A। नाउ दोनों बैठे हुए हैं, अब उसके साथ बोल दिया कि 239A को अब बोला गया। पहले 239 को सिर्फ बोला गया था कि अब एडजस्ट करो, 239A आ रहा है। अब इसको बोला गया कि तुम्हारे साथ एक और रहेगा, ये तुम्हारा छोटा भाई है, और एक छोटी बहन AB। सो ये जो है, ये क्लॉज, एक्स्ट्रा क्लॉज है, विच इज अटैच टू 239। अब ये इसके अंदर सब क्लॉज है। ये क्या है, इसके अब अंदर 239A के अंदर सब क्लॉज है। ओके, सो ये चीज है जो पार्लियामेंट ने किया है। अगेन कैसे किया है? CAA से किया। व्हाट इज दिस? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, पार्ट 10 में क्या है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है। पार्ट 11 में क्या है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 12, finance, property, contracts and suits in the union. Part 13, trade, commerce and intercourse. तो ये क्या बोलता है बेसिकली? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, दैट इंडिया इज अ फ्री कंट्री, नो स्टेट कैन इम्पोज sanctions or tolls on other state. You are a person who wants to sell your goods in Cherrapunji, you are sitting in Lucknow, you can do so. You are a Cherrapunji resident, you want to sell your goods in Mysore, you can do so. ओके, सो हम जो है अगर टोल अलाउ कर देते, हम अगर अलाउ कर देते कि वी अदर स्टेट्स कैन लेवी कस्टम्स और समथिंग लाइक दैट, वुड वी हैव बीन अ कंट्री? वुड वी हैव बीन अ सिंगल कंट्री? द आंसर इज नो। इसीलिए ये जरूरी है। पार्ट 14, इट टॉक्स अबाउट सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। तो यूपीएससी, स्टेट PCS इसके अंदर आ जाता है। फिर पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल्स आ जाता है। ट्राइब्यूनल्स इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? 14A लिखा हुआ है, इट मींस इट इज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? 14A, 323AB लिखा, अमेंडमेंट बाद में आया है। ओके, दिस इज लेटर ऑन। देन पार्ट 15 में इलेक्शंस है, 324 to 329A। देन पार्ट 16 में 330 to 340, इसमें स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC ST OBCs एंड एंग्लो इंडियंस। अब एंग्लो इंडियंस रहे नहीं इंडिया में, मेजोरिटी आर ओल्डीज 90 year old और पास्ट अवे, और their descendants they have already migrated to Canada and the Anglosphere, UK, Canada, Australia. So एंग्लो इंडियंस जो है अब हमने हटा दिया। पहले एंग्लो इंडियंस की एक कम्युनिटी रहती थी, उनको अकोमोडेट करने के लिए, सो दैट दे डोंट फील आउट ऑफ प्लेस, वी हैड अलाउड देम सम रिप्रेजेंटेशन, सम प्रोटेक्शन। देन 343, 351, पार्ट 17, दिस इज बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज, व्हाट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। और उसके बाद जो है आपका टोटल 395 एक्ट आर्टिकल्स इट वाज प्रेजेंट। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल्स की। सो देयर आर शेड्यूल्स एज वेल, टोटल 12 schedules are there, and UPSC can obviously ask, it has already asked about schedule 6 in 2022 prelims। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन भर करने से, मैं फिर कह रहा हूं, ओनली डूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, 70% of your polity syllabus will be over, and handouts, just read the handouts, उससे आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई कैन नॉट गारंटी दैट यू विल बी डूइंग 100% ऑफ द क्वेश्चंस, बट व्हाट आई कैन से, इफ यूपीएससी आस्क 15 क्वेश्चंस, आई कैन गारंटी 12, एटलीस्ट 12। हो सकता है 15 बाई 15 भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आप हैंड आउट कर जाओगे, आई गारंटी, ओके, ऑन रिकॉर्डिंग आई गारंटी, 12 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए हैं। 3 क्वेश्चन हो सकता है गवर्नेंस के घिसे पिटे कहीं से ऑब्सक्योर एक्ट से पूछ ले, ठीक है? ऑल राइट, दीज आर कैटेगराइजेशन। यस, बेसिकली जो है पार्ट्स के अंदर, ऑल राइट, पार्ट्स के अंदर जो है आपके आर्टिकल्स हैं, ऑल राइट, और
शेड्यूल जो है उसके अंदर भी देर आर सर्टेन प्रोविजन। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स विच आर 395 हम देखते हैं। सो दे आर बेसिकली अ सिंगल यूनिट, दे आर व्हाट, दे बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट। और शेड्यूल्स क्या करता है, शेड्यूल्स जो है इट प्रोवाइड्स additional provisions which are not present in the acts। अब समझ में आया, जो आपके आर्टिकल्स में प्रेजेंट नहीं है उसका एडिशनल प्रोविजन शेड्यूल्स बताता है। ऑलराइट, इसका वेन डायग्राम देखिए, अगर मैं मुझे बनाना हो अगर मुझे बनाना हो तो ऐसे समझिए, ये पार्ट्स है, पार्ट्स के अंदर आपका आर्टिकल्स आता है और आर्टिकल्स फॉर्म है सिंगल यूनिट। ये समझ में आ गया। एंड शेड्यूल जो है इट इज ए सेपरेट प्रोविजन लिस्ट, इट कंटेन्स एडिशनल प्रोविजन जो बाहर रहता है। यहां पर शेड्यूल है, अब समझ में आया। दिस येलो वाला शेड्यूल है एंड दिस रेड वाला, और उसके अंदर पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स है। सो पार्ट्स इट कंटेन्स द आर्टिकल्स एज अ सिंगल यूनिट, वेयर शेड्यूल्स आर additional provisions which are not mentioned in the parts। ओके, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपके आर्टिकल्स में नहीं डाले गए हैं उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन शेड्यूल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इज इट क्लियर? एंड द पार्ट्स प्लस शेड्यूल दे मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। The parts which contains articles as a single unit plus schedule, and they make the constitution। Is it clear to everybody? Okay, so preamble का ये जो आप बोल रहे हैं, दिस इज आपने भले इसको एक सिंपल वे में लिखा है, प्रियम्बल 2 इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पीछे बहुत बड़ा लफड़ा है, एससी की जजमेंट आई है ना, बहुत बड़ा लफड़ा है, और उसके बारे में हम लोग प्रियम्बल की क्लास, टुमारो वी विल स्टार्ट विथ प्रियम्बल ओनली। और प्रियम्बल की क्लास में उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बेरूबारी यूनियन से लेके एलआईसी ऑफ इंडिया केस तक ये लफड़ा चलते रहा एंड फाइनली इट गॉट सेटल्ड। और एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी का, दैट प्रियम्बल इज व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन but it is read independently of other parts। Now what is that we will also discuss। Okay, so I think